Good morning, students and friends. This is Mr. Pizatitus from Salem classes. So, students, today we are going to discuss about question answer after 20 years. Okay, this is chapter number 13 as per class 7th and English Holy Faith publication. Before entering to this video lecture, I have a small request. If newly you are watching my video or visiting to my channel, please subscribe it and also hit the bell icon. At the same time, send to your friends and also your classmates. So, let us discuss the question answer. Already, I have a video lecture of this chapter that was from another publication, not a Holy Faith publication. If you want to see that, you can type after 20 years by Salem classes, then you can see the video lecture also, all the explanation of the chapter. So then let us begin discussing of question answer. So there are 12 questions, and according my knowledge and according my thinking, so I have made it. If you are getting different answer, so there is full of freedom for you to suggest me either to make a comment. Okay, so question number one: how did the policeman look? What was his name? Okay, first of all, we need to know about his name. Okay, the policeman name was Jimmy Well. Okay, and also he looked so serious, and he was thinking about the criminal. He was in the habit of talking to himself sometime. सो जब हम उसके बारे में देखते हैं तो उसका नाम होता है जिमी वेल, और वो काफ़ी सीरियस दिख रहा था क्योंकि सुबह सुबह उसका बॉस ने उसको एक क्रिमिनल के बारे में कहा था। और जब वहाँ पे राउंड लगा रहा था तभी वो अपने आप बातें भी करता था। उसका एक हैबिट था कि कभी कभी वह अपने आप में बात कर लेता था। What was the policeman doing at the square? वो जो स्क्वायर था उस स्क्वायर में ये पुलिसमैन क्या कर रहा था? He cast his watchful eye along the quiet square and was thinking of what his boss had said in the morning. वो बिल्कुल अपनी आँखों को वो स्क्वायर के ऊपर लगाया हुआ था और साथ ही साथ अपना बॉस उसको जो सुबह के समय पर कहा था उसके बारे में वो सोच रहा था। What kind of weather was it at the time? यानी उस समय मौसम कैसा था? मैं बिल्कुल शॉर्टली आंसर को लिखा हूँ, आप इसमें जोड़ भी सकते हैं। द वेदर वाज इट एट दैट टाइम, ये करके फिर आप आंसर को लिख सकते हैं। ए चिली विंड विद द टेस्ट ऑफ रेन वाज ब्लोइंग, यानी सर्द हवा और थोड़ी थोड़ी बारिश के साथ तो बह रही थी। व्हाट वाज द पुलिसमैन थिंकिंग ऑफ? पुलिसमैन क्या सोच रहा था? द पुलिसमैन वाज थिंकिंग ऑफ द क्रिमिनल, वो उस क्रिमिनल के बारे में ही सोच रहा था। What I had been told about the notorious criminal, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि वो नोटरियस क्रिमिनल के बारे में क्या कहा गया था उसको। ठीक है, आप आंसर को थोड़ा लंबा करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
He had been told about the notorious criminal. Number one, his appearance was pale-faced with a square jaw, deep and dark eyes, a little scar near the right eyebrow told about the criminal. ये लाइन को छोड़ सकते हैं और ऊपर जो मैंने कहा आप उसे लिख सकते हैं, या तो फिर आप जैसा मैं लिखा हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। What did the policeman take out his pocket book? अपना पॉकेट बुक से वो क्या निकाला? A reconstructed photograph he took out from his pocket book. तो अपनी पॉकेट बुक में से वो एक रिकन्स्ट्रक्टेड फोटोग्राफ को वो निकालता है और उसे देखता है। What to him was a matter of shame for the police department. अभी उसके अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए लज्जा की बात क्या हो सकती है? He thought it a matter of shame for the police department that the man was still not arrested. ये पुलिस में डिपार्टमेंट के लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि वो जो क्रिमिनल है अभी तक अरेस्टेड नहीं हुआ है, यानी अभी तक आज़ादी के साथ वो घूम रहा है। हाउ डिड द पुलिसमैन कम टू नो was the man in the doorway was? जो डोरवे में जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कौन था, पुलिसमैन को कैसे पता चला? When the man light for cigar, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है वहाँ पे, एक्चुअली आपको लिखना है when। ओके, मैं उसे चेंज कर देता हूँ। when man when the man light for cigar, so he could see his face and understood who was he. जब उसने और उसका चेहरा को देखा, ठीक है, कब? जिस समय कि वो सिगरेट पीने के लिए अपना मतलब लाइटर को ऑन किया, तब उसका चेहरा को उसने पूरा क्लियर से देखा और देखने के बाद फिर वो पहचान लिया कि वास्तव में जिस फ्रेंड से मिलने के लिए आया था वो फ्रेंड तो है लेकिन वो बदला हुआ आदमी है, अब वो एक क्रिमिनल है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नोटरियस क्रिमिनल। इस नोटरियस क्रिमिनल के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप दीजिए। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है, ही वॉज द फ्रेंड ऑफ जिमी, ही वेंट टू कैनेडा टू सीक हिज फॉर्चून। तो वो उसका फ्रेंड था, जिमी का फ्रेंड था, जो कि अपने भाग्य को आजमाने के लिए कनाडा की तरफ चला गया था, और वो भी लगभग 20 ईयर्स अगो। और अपनी किस्मत को आजमाते हुए वो एक क्रिमिनल बन जाता है। तो द कॉप ऑफ चिकागो वाज सर्चिंग हिम। तो चिकागो का जो पुलिस है वो क्या कर रही है, अभी उसे ढूंढ रही है। वाई डिड द पुलिसमैन नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल हिमसेल्फ। ये क्रिमिनल को पुलिसमैन खुद क्यों अरेस्ट नहीं किया? इसका क्या कारण हो सकता है? ही हिमसेल्फ नॉट अरेस्टेड टू द क्रिमिनल बिकॉज ही वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड। वो इसलिए उसका अरेस्ट नहीं किया था क्योंकि वो उसका ओल्ड फ्रेंड था। ऐसा डायरेक्टली तो बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मेरा अनुमान है। व्हाट डिड द पुलिसमैन डू टू हैव द क्रिमिनल अरेस्टेड। पुलिसमैन ने क्या किया उस क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए? ही सेंट अनदर कॉप टू अरेस्ट हिम। तो वो दूसरा पुलिस वाला को भेजता है उसे अरेस्ट करने के लिए। Who was Bob? How did he come to the tall man was not Jimmy well? तो बॉब कौन था और उसे कैसे पता चला कि जो लंबा सा व्यक्ति उसके साथ बात कर रहा है
वो जिम्मेबल नहीं है। बच्चों, ये आंसर थोड़ा लंबा हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके लिखा। बॉब वॉज ए क्रिमिनल एंड ए फ्रेंड ऑफ जिम्मी वेल। बॉब तो एक क्रिमिनल था और साथ ही साथ उसका पुराना दोस्त भी था। When Bob looked closely his face, जब वो बड़ी गहराई से उसके मतलब चेहरा को देखा, जब वो एक लाइटेड प्लेस में आ गए थे, he recognized that he was not Jimmy to whom he wanted to meet. वो जिम्मी नहीं है जिससे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए वो इतना दूर से यहाँ पे आया है। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा लगा होगा, और अगर और कोई भी प्रॉब्लम है तो कृपया करके आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू।